Hello dear students, good morning. And now see that we have been improving, we have been trying to set good accuracy in structures are the most important points. We have been learning slowly and gradually. The improvement is coming. No matter somehow we make the mistakes, but mistakes are actually the parties. Those who are intelligent, those who are genius, and those who are caring, they make the mistakes. So mistakes are not actually the evils. Mistakes are not actually the crimes. Those mistakes which are made in learning, in improving the study, are just focusing the career. Such mistakes are not actually the big blunders to be regretful or to be sad and upset that we make the mistakes. No, not at all, because this is what the training, and wherever the training is delivered, the people or the trainees actually make mistakes there. So mistakes, as I say, it's actually the part and parcel for one's learning, for one's improvement. So it's really a constructive and productive role. And if you are making, or if you have something, because when you have some sense of mistakes in your mind, you will surely realize. You ask, or you just go through the books and pick out some important things there. So these are actually the mistakes. These mistakes actually convince or enforce you to learn more, to study more, to consult and refer different books, okay, or to practice more MCQs. So these mistakes actually make you restless or impatient for what? For learning more, okay, for making you more authentic, okay. They want to make you what? Stronger one. So it's not actually the faulty or the fact that the students mostly become regretful or they become disappointed, as I've noticed. They say, sir, hardly we are making the improvement. Dear students, it is the big improvement. You just, I say what? You just stop being upset or disappointed due to mistakes. You will grow fabulously wonderful people for the students in your future. So see, we always consider mistakes or errors as the negative part in our life, as what? As the dangerous part in our life. We are scared of mistakes. Okay? I say no, never at all. Mistakes are really important and they make you stronger. I think you are lucky enough. You are lucky enough, I say, and it's good thing. And you are fortunate to have mistakes at this time. Okay, you have mistakes during the process, during the phase of the preparation of your study. When the teachers, the books are different, sources or resources of study are available around you, when you apply and utilize all of your energy, your options, your tactics or strategies to what, please? Sorry. To pick out the mistakes, okay, or to learn the mistakes. Suppose such mistakes suddenly come at the time when you are appearing or attempting your test. Tell me what will be then? What will be the use, or what will be control to overcome such mistakes? Will you be able to stop the pressure or the intensity or the severity of mistakes at the time when you are just choosing the right option? Just you are sorting out the right options for your test or success. So I say those students who are very happy, who are confident despite mistakes, despite low score of marks, or despite some errors, they are very confident, and this confidence will reach them, will bring them near to the success, near to the achievement. While those students who become hopeless, who feel like look like failures because of a few mistakes. If a few mistakes
defeat you, if a few mistakes beat you, tell me, dear students, how will you be able to strongly face more hardships in your life to come, in your practical life? So don't be scared of the mistakes. Mistakes are blessings. Mistakes are just like ladders, just like the stair where we climb up to reach the success. In my eyes, in my opinion, dear students, mistakes are just like stairs. Steps are stairs. Steps are ladder where people come to walk, where people come to mount and climb up to reach the highest aim. Highest aim. Okay, that is actually the secret of mystery of mistakes. But my dear students mostly complain and they become quite upset while getting up early in the morning, and they just recall the regretful things of the past, that in the previous test we had low score of marks. I say, no, don't worry, please. Don't be, upset. Don't lose your heart. Tighten your heart and mind both. Have very strong nerves. And these things will give you, give you what? Extra benefits. These things will lead you to the success. Nothing else. Psychologically, please be strong and important person. Okay, right, it's enough now. I was waiting to see the more students to join me, and almost somehow they have come, but it is just quite early time. So maybe some of you are still sleeping, thinking for the mistakes to commit. I think this may be the reason there, no matter, but I haven't made any mistake and on my time, right? तो बेटा देखिए, आपको कुछ बातें ये समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी की हैं। बहुत बातें ये मतलब इसके अंदर एक बहुत बड़ा फहम और इसके अंदर विजडम है। आप इस पर सोचिए ज़रा और देखें, दुनिया को भी देखें, दुनिया के कामयाब लोगों को भी देखें। तो बड़े लोग नाकामियों और गलतियों की वजह से हुए, वो बड़े लोग नाकामियों और गलतियों की वजह से हुए। तो आप थोड़ा पहले देख लें, हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है। किसी बार अगली बार मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। देखो, कल हमने जो पढ़ा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था बेटा। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर 2, 3 या 4 एडजेक्टिव्स लग जाते हैं और हम जो वो मतलब वहाँ भी एरर्स करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में आपकी कोई एरर नहीं होगी। मैं एक बात दूसरी आपको बता दूं कि भले ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में आपके 2 या 3 एडजेक्टिव्स आ जाए, लेकिन आपको एक केयर करना होगा, और वो केयर ये कि भाई आर्टिकल होता है, अगर कोई सिंगुलर नाउन के साथ 2-3 जो वो एडजेक्टिव लगे हुए होते हैं तो भी आपको यानी आर्टिकल को नहीं फॉरगेट करना है। फॉर एग्जांपल देखो ना, हम लगा रहे थे इस तरीके से लगा रहे थे, ठीक है। सिल्वर शाइनिंग, देखो सिल्वर या शाइनिंग सिल्वर, देखो हम लगाते हैं शाइनिंग सिल्वर, देखो शाइनिंग सिल्वर कार। तो हमने तो मतलब 2 लगाए, शाइनिंग सिल्वर कार, देखो हमने 2 लगाए, लेकिन इधर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये आ रही है, कौन सी? ये वाली। देखो मैं ऑप्शंस आपको दूंगा या ऑप्शंस में आ सकता है, और हमने पहले आर्टिकल के यूज में भी ये बात पढ़ी है कि जब भी आपका कोई सिंगुलर नाउन आता है तो आपको इन चीजों का केयर करना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल का केयर करना पड़ता है, कोई डिटरमिनर सिंगुलर के साथ कुछ ना कुछ आपको लगाना होगा। हमने नाउन के यूज में पढ़ा था ये, मैंने आपको नाउन्स के यूज में ये बताया था कि जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ आप यदि कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपका फोकस सिर्फ किस पे हो, यानी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पे हो कि भाई ऑर्डर तो सही होना चाहिए। फिर इसको मतलब देखो, एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा, अच्छा दूसरा ऑप्शन देखो इस तरीके से मिलेगा, आप इधर ही देख सकते हैं शाइनिंग सिल्वर। इसकी जो वो मैं आपको कल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, जो हमने पढ़ी है और आज भी हम पढ़ाते कुछ, तो वो मिलाकर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। 2 दिन पढ़ा के फिर प्रैक्टिस इसी तरीके से, ताकि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए और आपके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। इसीलिए कि अगर एतमाद आ जाता है तो इंसान खुद ही जो चीज़ों को फेस कर लेता है, यही बात सारी कॉन्फिडेंस की होती है। अच्छा, शाइनिंग सिल्वर की कार देखिए, एक ये पढ़ा है, अब मतलब ये गलत हो गया और ये सही होगा। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, देखें
इस तरीके से भी लिखते हैं। अ सिल्वर, देखो ये ऑप्शन आ गया, अ सिल्वर शाइनिंग। मैं आगे पढ़ाता हूँ, थोड़ा ये बता के मेरे जहन में था कि आप मतलब ऐसा ना हो कि कोई गलती करे। देखो अ सिल्वर शाइनिंग कार, ये इस तरीके से भी आ गया, या आप देखें इस तरीके से भी आ सकता है, सिल्वर शाइनिंग। देखो सिल्वर शाइनिंग कार, ये ऑप्शन आपका इस तरीके से भी आ गया। तो आप खुद देखें ये ऑप्शंस आपके पड़े, ठीक है। चारों ऑप्शन मतलब दो में से बना दिए, तो कभी ऐसा भी आ सकता है। आप प्लीज इन चीजों की डेप्थ को, इतनी बड़ी कोई डेप्थ मतलब कॉम्प्लिकेटेड डेप्थ नहीं है जो आप मुश्किल फील करें, बहुत आसान है। एंजॉय करें, एंजॉय करें, अपनी लर्निंग को एंजॉय करें। आपकी अपनी लर्निंग है ना, किसी और के लिए तो आप नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। खुद के लिए हम जो करते हैं सुकून के लिए करते हैं। खुद के लिए जो भी चीज होती है देखो हम करते हैं अपने सुकून के लिए और अपनी राहत के लिए, ठीक है, या अपनी खुशी और तस्कीन के लिए करते हैं। अब आप देखिए नाश्ते के लिए भी देख रहे हैं, वो क्यों, आपके सुकून के लिए, राहत के लिए कि भाई नाश्ता मिले, हमें चाय मिले, ये वो चीजें मिल जाए जल्दी जल्दी, देखो तो वो जो तड़प होती है। तो ये मतलब इस तरीके से मैंने तो ये मामूली एग्जाम्पल दिया मजाक में, लेकिन जो भी इंसान अपने लिए करता है अपनी खुशी के लिए, तो जो चीज़ हम अपनी खुशी के लिए, बेहतरी के लिए करें, उसमें हम जो वो परेशान हो, उसमें हम जो वो सोच में पड़े हुए हैं, उसमें हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, या हम जो वो उसके लिए दर्द महसूस कर रहे हो, तकलीफ महसूस, बड़ी कोई ट्रेजेडी हुई हमारे, हमसे बड़ा कोई हादसा हुआ है कि सुबह सुबह उठे, बेटा ऐसा थोड़ी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी मतलब अपने आप को रिफ्रेश करें, ठीक है, वो रिमूव करें तो सही हो जाएगा। चलो हम आज तो चीजें समझ में भी आएंगी, ये जो फिर शाइनिंग वाकई नजर भी आएगी, कार की शाइनिंग नहीं, बोर्ड की और इनकी मतलब नजर भी आएगी। तो आप उस चीज को देखें, शाइनिंग सिल्वर कार, तो उसका देखें ये राइट ऑप्शन हुआ। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं है इसीलिए गलत हुआ। इसका देखो क्यों गलत हुआ, ये इसीलिए बेटा गलत हो गया क्योंकि ये ऑर्डर गलत है, ऑर्डर गलत है। सिल्वर कलर है इधर, सिल्वर मटेरियल नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, सिल्वर इधर कलर के तौर पर, क्योंकि सिल्वर की गाड़ी बनने में नहीं होती। अब आप जाके पता नहीं कहाँ से निकालेंगे गूगल से, किसी ने हाँ हमने देखी, उनकी थी, उस एक्टर की थी, फलान की थी, नहीं वो अब ग्लैमर के हिसाब से या कोई अलग बात है, एक कोई गाड़ी है तो उसको छोड़े आप, आपको वो नहीं देंगे एग्जाम्पल। ये भी गलत है अब, क्योंकि ये ऑर्डर दुरुस्त नहीं है और इधर भी ऑर्डर भी दुरुस्त नहीं है और ये भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन ये समझाया है कि जब भी कोई एक चीज हो, जब भी कोई एक चीज हो, ठीक है, तो आपको ये जहन में रखना होगा, यानी ए लग सकता है, दिस लग सकता है, दैट लग सकता है, एन लग सकता है, जैसा मतलब सेंस होगा वो, जैसे हमने एन इंटेलिजेंट हम स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ नाइस इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखो अ नाइस इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हमें एन ओबीडिएंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट देखो हमने इस्तेमाल कर लिया इस तरीके से, राइट। अब आते हम अगले टॉपिक पे। बेटा देखिए एडजेक्टिव्स जो होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के अंदर काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि हम किस तरीके से उनको हल करें। जैसे आप देखिए हमारे पास वर्ड एक ओल्ड होता है, ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो है वर्ड हमारे पास इल्डर, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, इल्डर होता है, ठीक है, या देखो अलग वर्ड जो होता है इल्डरली होता है। ये जो वर्ड्स होते हैं हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम इनको किस तरीके से यानी यूज करें सेंटेंस के अंदर। बेटा देखो ओल्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, ओल्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं, यानी ओल्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी की एज या टाइम जो वो एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, एज और टाइम के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एज हम किसी की मतलब कंपेयर करें, शो करें, ठीक है, मतलब एज की कंपैरिजन के लिए, या किसी का टाइम, ठीक है, टाइम जो होता है वो किसी का कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, यानी ये इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, फॉर ह्यूमन बीइंग नॉट ब्लड रिलेशन थिंग्स, मतलब वो जिसके भी एज और टाइम, मतलब आप ह्यूमन बीइंग्स के भी कर सकते हो बेटा, ह्यूमन बीइंग के भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आप जो वो एनिमल्स हो या थिंग्स हो, ठीक है, यानी किसी की भी एज और टाइम को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, ओल्ड, और फिर वो ह्यूमन बीइंग्स हो सकती हो
एनिमल्स हो सकते हैं और थिंग्स हो सकते हैं। उनके टाइम और एज को कंपेयर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ओल्ड इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो किसके लिए, एज और टाइम को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जबकि सेकेंड वर्ड देखो इधर पड़ा है एल्डर, ठीक है। एल्डर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एल्डर हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो ब्लड रिलेशन है। ये ब्लड रिलेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होता, नॉट फॉर ब्लड रिलेशन। एक बात आप ध्यान में रख लें, फॉर ह्यूमन बीइंग नॉट ब्लड रिलेशन। देखिए ये ब्लड नॉट फॉर ब्लड रिलेशन, नॉट फॉर ब्लड रिलेशन, ये आप ध्यान में रखना कि ओल्ड जो है वो हम ब्लड रिलेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ब्लड रिलेशन के लिए हम इस्तेमाल नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्लड रिलेशन के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। ब्लड रिलेशन से मुराद कि अब ब्लड रिलेशन के मतलब अंदर अगर कोई मतलब कोई बड़ा है क्या है तो उसके लिए हमारे पास सेकंड जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। और वो वर्ड कौन सा है, यानी वो वर्ड है एल्डर, ठीक है। ब्लड रिलेशन के लिए ह्यूमन बीइंग देखो, ह्यूमन बीइंग हैविंग ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन। तो हम ब्लड रिलेशन जब भी होता है तो हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं एल्डर। क्या हम इस्तेमाल करते हैं, एल्डर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्लड रिलेशन वाला जो रिश्ता हो ना उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। और जबकि ये क्या हम इस्तेमाल करते हैं, एल्डर, देखो बेटा ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बड़ा होता है, ठीक है। एल्डरली पीपल मतलब एल्डरली मतलब अदर देन ब्लड रिलेशन, यानी ब्लड रिलेशंस के सिवा अगर कोई बड़ा होता है तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं एल्डरली, ठीक है। अदर देन ब्लड रिलेशन, अदर देन ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन के सिवा अगर कोई होता है तो हम उसके साथ जो बड़े होते हैं, जो हमसे बड़े लोग होते हैं, जो मतलब यानी माशरे में या मोहल्ले में या हमारे इर्द गिर्द जो भी बड़े लोग होते हैं तो हम उनके लिए एल्डरली वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एल्डर के साथ हम एलवाई वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी वो आपका मतलब हो जाएगा, यानी एल्डरली हो जाएगा। तो हम आते हैं पहले बेटा देखो ओल्ड पे। ओल्ड हम वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं, देखें ओल्ड हम इस्तेमाल करते हैं एज या टाइम की कंपैरिजन के लिए। फिर वो ह्यूमन बीइंग की एज भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, थिंग्स की भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जैसे हम बोलते हैं पुरानी के हवाले से तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्लड रिलेशन की एज को मतलब हम अगर लिखते हैं या टाइम को लिखते हैं तो आप देखें एल्डर इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। और देखें अगर ब्लड रिलेशन के अंदर भी बेटा अगर हमें कोई एज और टाइम कंपेयर करना होगा तो हम एल्डर इस्तेमाल नहीं करेंगे, एल्डर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे ओल्डर। कंपैरिजन के लिए देखो एज और टाइम के कंपैरिजन के लिए हम ओल्ड इस्तेमाल करें। एज के मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग्स, फिर आप देखें भले ह्यूमन बीइंग्स ये हो लेकिन अगर उनकी एज और टाइम को भी कंपेयर करना होगा तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओल्ड। और ये मतलब जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, उन फैमिली मेंबर्स में जो बड़े होते हैं तो बड़े वाले सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, ठीक है, जैसे आप देखें शी इज माय एल्डर सिस्टर, शी इज माय एल्डर सिस्टर, देखो आपने इस्तेमाल कर लिया ये एल्डर सिस्टर। तो आप देखिए यानी एक तो ब्लड रिलेशन हो गया, फैमिली मेंबर हो गया और बड़े की बात हो गई तो आप देखिए हमने एल्डर इस्तेमाल कर लिया, शी इज माय एल्डर सिस्टर, ठीक है। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप देखें ही इज माय एल्डर ब्रदर, देखो ही इज माय एल्डर ब्रदर, तो आपने इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया ही इज माय एल्डर ब्रदर। तो ये भी आप देखो ब्लड रिलेशन के अंदर आप इस तरीके से मतलब किस तरीके से, जब आप सिर्फ ये बताओ कि ये इस मतलब फैमिली के अंदर हमारे सिबलिंग्स के अंदर या भाई बहने जो हैं या और भी कोई है वो बड़ा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, एल्डर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप इसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें ही इज एल्डर या माय ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो भाई ये गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह लिखेंगे माय ब्रदर इज, देखो माय ब्रदर इज एल्डर देन मी, बेटा देखो एल्डर देन मी, अब देखो ये गलत है।
क्योंकि कंपैरिजन के लिए ज़हन में रखें, भले वो सिबलिंग्स के अंदर हो, भले ब्लड रिलेशंस के अंदर हो, अगर उनमें भी अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, किसी की एज और टाइम को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उस एज और टाइम को कंपैरिजन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वो ओल्ड इस्तेमाल करते हैं। आप जहन में रख ले कि ये मतलब हम इस्तेमाल करते हैं कब? जब हमें ये चीजें एज और टाइम क्या करना हो? कंपेयर करनी हो। ठीक है, कंपैरिजन के लिए जो है वो आप ये इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम ओल्ड इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं, आप देखो इसमें कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ क्या है कि वो बड़े। अब इसमें एल्डर भी होता है और एल्डेस्ट भी होता है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय ब्रदर इज एल्डर देन मी, ये देखो गलत हो, ये हमारी एरर होगी। ठीक है, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सेम के साथ आप देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ये सेंटेंस आपका गलत हुआ और आप देखें इधर इस्तेमाल करेंगे माय ब्रदर इज, क्या माय ब्रदर इज ओल्डर देन मी या ओल्डर देन आई, आप ये इस्तेमाल करेंगे माय ब्रदर इज ओल्डर देन आई। ठीक है, मी भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर, तो इसमें ऐसी गलती नहीं है। स्पोकन होता है, रिटन के अंदर क्या आई हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो ओल्डर हो गए, यानी जब भी आप एज या टाइम को कंपेयर करेंगे तो एज और टाइम के कंपैरिजन के लिए एल्डर इस्तेमाल नहीं होता, खाली होता है, मतलब वो भी ब्लड रिलेशन के अंदर किसी दूसरे पर्सन के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। शी इज माई एल्डर सिस्टर, ही इज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से मतलब अगर हम बोले कि ये 2 साल इससे बड़ा है तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या? ओल्डर। ठीक है, ही इज ओल्डर, ओके, देन हिम। ठीक है, देन ही या देन आई, देन यू, इस तरीके से। तो जब भी मतलब हम इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन के लिए, मैं उधर आता हूँ। ठीक है, ये खाली इस्तेमाल होता है सिर्फ बड़े के सेंस में, और वो भी मतलब फिक्स है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या है? ह्यूमन बीइंग हैविंग ब्लड रिलेशन, सिर्फ उसमें इस्तेमाल होता है। और इसके साथ देन वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन में इस्तेमाल ही नहीं होता, तो हम कैसे इस्तेमाल करें? इसे हम बोलते हैं शी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर, एल्डेस्ट भी हम बोलते हैं शी इज माई एल्डेस्ट सिस्टर, या नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखो, हम बोलते हैं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, देखो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो जो बड़े जो फैमिली के अंदर है उनकी हम बात करते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो हमने देखो ये इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स यानी ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल हो गया, जो हमारी फैमिली के बड़े हैं, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इसमें आप समझे क्या? एल्डर कब? एल्डर का मतलब है बड़ा। कौन? जो हमारी फैमिली के अंदर जो बड़ा होता है, यानी ब्लड रिलेशन वाली बात। ब्लड रिलेशन जो हमारा है उसमें अगर कोई बड़ा है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक यानी पर्सन को दूसरे पर्सन से उसकी एज या उसका टाइम जब कंपेयर करेंगे, यानी एक दूसरे से बड़ा होता है, तो वो भले फैमिली रिलेशन में हो या फैमिली से बाहर हो, वो भले ब्लड रिलेशन हो या ब्लड रिलेशन से बाहर हो, लेकिन उसके कंपैरिजन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम ओल्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या हम इस्तेमाल करेंगे? ओल्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ही इज, या फॉर एग्जाम्पल भले आप इस्तेमाल करें माई सिस्टर, देखो ये ऐसा नहीं है माई सिस्टर इज 20 ईयर्स या 30 ईयर्स ओल्ड, देखो 30 ईयर्स आप देखो ओल्ड, ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब आप बोलेंगे, थोड़ा आपको मिसकंसेप्ट होगा कि सर आपने लिखा है कि नॉट फॉर ब्लड रिलेशन, मैं कहता हूँ ब्लड रिलेशन इस तरीके से, ब्लड रिलेशन इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर देखो नो कंपैरिजन, हम कंपेयर नहीं कर रहे बेटा, इसके अंदर क्या है? कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन इसके अंदर नहीं है, कोई इसके अंदर हम किसी की जो एज या टाइम जो वो शो नहीं करते, एज और टाइम शो नहीं कर रहे, इसके अंदर कोई एज और टाइम शो नहीं होगा एल्डर के साथ। अगर आपको एज, टाइम या कंपैरिजन, 3 चीजें ज़हन में रखें, अगर भले वो आपका ब्लड रिलेशन है, उसके अंदर आप एज, टाइम मतलब आप शो करेंगे, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ओल्ड इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, माई सिस्टर इज 30 ईयर्स ओल्ड, एल्डर नहीं होगी क्योंकि आपने टाइम बता दिया, टाइम बता दिया। इस तरीके से अगर आप देखो मतलब अलग भी आप कंपेयर करोगे, जिससे आप देखें यानी ये भी मतलब आप कर सकते हो कि माई सिस्टर इज ओल्डर, देखो माई सिस्टर इज ओल्डर देन आई, देखो ओल्डर देन आई, क्योंकि हमने देन इस्तेमाल किया, हमने कंपेयर किया, हमने इसकी एज को इसके टाइम को कंपेयर किया इससे,
तो जब एक ही एज और टाइम को आप कंपेयर करेंगे तो आप ओल्ड इस्तेमाल करेंगे या ओल्डर इस्तेमाल करेंगे। ओल्डेस्ट भी होता है, ठीक है, ओल्डेस्ट भी, जैसे हम किसी प्लेस या थिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ओल्डेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप देखें, जैसे आप देखें, मतलब आपने इससे टाइम लगाया, इधर देखो कंपैरिजन की, आप इस तरीके से कंपैरिजन और एज के लिए टाइम एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने अगर इधर इस्तेमाल किया माय सिस्टर इज, देखो ये गलत हो जाएगा। मैं एक और दे रहा हूं आपको, माय सिस्टर इज 30 इयर्स एल्डर, 30 इयर्स एल्डर। तो आप देखिए बेटा ये गलत हुआ, ये सेंटेंस आपका गलत हुआ। तो एज और टाइम वो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, थिंग्स, किसी का भी इस्तेमाल कर। दिस इज एन ओल्ड स्कूल, देखो आपने इस्तेमाल कर लिया, एन ओल्ड स्कूल। मोहनजोदड़ो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन सिंध, देखो आपने, क्योंकि वो मतलब टाइम को देखकर इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल, ह्यूमन बीइंग के लिए, सबके लिए। लेकिन सेंस क्या है, एज और टाइम। तो एज और टाइम देखो, हमने इधर भी मिसाल के तौर पर माय सिस्टर इज ओल्डर देन आई, इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 इयर्स की होगी और दूसरा जो है ज़ाहिर 20 ईयर का है, इसीलिए मतलब ये देखो एज और टाइम का कंपैरिजन हो गया। तो ये ध्यान में रख लें। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग, वो जो ब्लड रिलेशन वाले हो, ठीक है, और उसमें भी कंपैरिजन एज और टाइम का ना करें। सिर्फ ये हमें बताना है कि ये उसमें बड़ा है, ठीक है, ब्लड रिलेशन जो हमारे सिबलिंग्स है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि बेटा ये क्या है, अदर देन ब्लड रिलेशन, ठीक है, अदर देन ब्लड रिलेशन, जिसका मतलब जो बड़े हो, जिसे हम बोलते हैं एल्डरली पीपल। आप देखिए हम बोलते हैं ना एल्डर पीपल नहीं बोलेंगे। अब देखो अगर आपने ये बोला तो ये गलत हो जाएगा, एल्डर पीपल, देखें गलत हुआ। जो बड़े होते हैं उन बड़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्डर। ये अब गलत हुआ, क्योंकि एल्डर पीपल, एल्डर तो वो होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, तो ये ब्लड रिलेशन थोड़ी होते हैं। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ये आपका गलत हुआ और आप बोलेंगे एल्डरली पीपल, ठीक है, यानी जो बड़े लोग होते हैं, जो मतलब हमसे बड़े, जो बाकी जो होते हैं, अदर देन अवर सिबलिंग्स, अदर देन ब्लड रिलेशंस जो भी होते हैं, ठीक है, इनमें भी कोई ऐसी कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन के लिए, टाइम को शो करने के लिए, एज को शो करने के लिए, दूसरों से मतलब बड़ी एज को शो करने के लिए हम कंपैरेटिव के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव के लिए भी हम इस्तेमाल ये करेंगे। ये सिर्फ जो इस्तेमाल करते हैं फैमिली के अंदर या ब्लड रिलेशन के अंदर, जो हमारे ब्लड रिलेशन उसमें अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें वो जो लोग बाकी मतलब हमारे मुआशरे के अंदर हमसे बड़े होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्डरली पीपल हम इस्तेमाल करते हैं। एल्डरली पीपल, एल्डरली डिग्निफाइड, देखिए कायदे आज़म के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ना ये वर्ड, तो इस तरीके से। तो इनमें ऐसा कोई नहीं है, हम इसी को प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ और भी लफ्ज़ में अल्फाज जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी, शाबाश। तो फिर मैं जो सेकंड भी थोड़ा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, शाबाश। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा बेटा, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद देखिए सेकंड जो है ये हुआ फर्स्ट आपका। उसके बाद यानी जो सेकंड है आपका यूज, जो सेकंड है बेटा, ये समझ गए होंगे आप, कुछ मैसेज इस क्वेश्चन में। अच्छा, उसके बाद जो वर्ड्स हैं बेटा एडजेक्टिव्स के अंदर, हम एडजेक्टिव्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं, ऊपर मैंने हेडिंग नहीं दी, आप हेडिंग दे देना, ठीक है। जैसे हम वर्ड्स और भी हैं, जैसे एक होता है लेट, ठीक है, दूसरा बेटा होता है लेटर, और तीसरा वर्ड जो होता है आपका लेटेस्ट, ठीक है ना। ये जो है वो वर्ड्स आप देखें, एक लेट, दूसरा लेटर, और तीसरा वर्ड कौन सा होता है, लेटेस्ट, और चौथा वर्ड जो होता है देखें लेटर, LATTER, ठीक है ना। ये 4 वर्ड्स होते हैं, ये भी एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बेटा। क्या, एक लेट होता है, लेटर होता है, लेटेस्ट और लेटर। अब देखो स्पेल में फर्क है बेटा, स्पेल में फर्क है। अब ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, किस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, जब कोई डिले होते हैं, टाइम में डिले होती है, लेट होती है ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या, लेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जब डिले होती है
ठीक है ना, भी को लाना दिया अच्छा। तो देखिए बेटा, जब कोई लेट वाला सेंस होगा तो देखिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वर्ड डिले के सेंस में इस्तेमाल करेंगे लेट। अच्छा, ये लेटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी लेटर इस्तेमाल करते हैं जब फ्यूचर में कोई सेंस में देर हो, एट अ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, एट अ टाइम इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर के अंदर अगर कोई देर हो, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एट अ टाइम इन फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे। और लेटेस्ट वर्ड बेटा कब इस्तेमाल करेंगे, जब मोस्ट रीसेंट, क्या मोस्ट रीसेंट वाली बात हो, अप टू डेट हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या, लेटेस्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और लेटर कब इस्तेमाल करते हैं बेटा, लेटर वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सेकंड, मतलब इसका क्या होता है, जब सेकंड होता है कोई दूसरा होता है, पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब पोजीशन हमें शो करनी हो। मिसाल के तौर पर आपके पास देखें दो है, एक और दो नंबर पड़े, जब आप देखें सेकंड की बात करेंगे तो इसको लेटर बोलेंगे। एक ये हुआ, दूसरा ये, देखो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और आप चाहते हैं कि मैं जो दूसरा चैप्टर भी पढ़ूं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, लेटर। तो लेटर जो है पोजीशन को, देखिए ये अल्फाज तीनों मैंने इधर लिखे हैं, इन तीनों वर्ड्स का ताल्लुक किससे, टाइम से। देखो ये हम इस्तेमाल करते हैं लेट के लिए, वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेट जब कोई देर होती है इसके लिए। और लेटर देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, यानी एट अ टाइम इन फ्यूचर, विल लर्न लेटर, ओके। और लेटेस्ट क्या मतलब क्या, लेटेस्ट न्यूज हम बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हम एग्जांपल्स छोटे आपको देते हैं, ठीक है, क्लास में देर होती है। अच्छा, लेटेस्ट न्यूज देखें, ये मतलब हमने इस्तेमाल कर लिया, लेटेस्ट डिवाइस हम बोलते हैं, ठीक है, या लेटेस्ट देखें, कोई एग्जांपल ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। लेटर यानी फ्यूचर के लिए, विल सी यू, ओके, देखें विल टॉक टू यू लेटर, इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, विल सी यू हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेटर मतलब बाद में, इन फ्यूचर। या ये इस्तेमाल करते हैं, बेसिक एग्जांपल्स है, यू आर लेट, देखो यू आर लेट बेटा, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बी का वर्ब लग रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। द लेटर चैप्टर, देखो हम इस्तेमाल करते हैं लेटर मतलब बाद वाला, भाई फर्स्ट वाला ना हो, सेकेंड वाला पोजीशन शो करता है, देखिए पोजीशन शो करता है। द लेटर चैप्टर देखिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, लेटर चैप्टर वो क्वाइट बोरिंग, देखें मतलब सेकंड जो होता है, फर्स्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग था और उसके बाद सेकंड वाला था वो क्वाइट बोरिंग था, देखें इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये इससे इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको सेंस दे रहा हूँ, ठीक है। इसके फर्दर एग्जांपल्स वगैरह प्रैक्टिस में करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें और जो वर्ड्स है, देखिए एक होता है बेटा फार होता है, ऐसे मतलब देखो फॉरवर्ड होता है, उसके बाद सेकंड कौन सा होता है, फार्दर होता है। अच्छा, और तीसरा जो वर्ड होता है क्या, फर्दर होता है। ये भी बेटा इस्तेमाल होते हैं, ये भी थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, देखिए थोड़े थोड़े जो कंफ्यूजिंग है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो अल्फाज देखो मैं एक्सप्रेशन में आपको दे रहा हूँ। देखो बेटा ये फार जो है ये पॉजिटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होता है वर्ड, ये किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप देखें, यानी ये भी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फार्दर हम कब इस्तेमाल करते हैं, यानी ये भी एडिशनल डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये कंपैरेटिव है, एडिशनल डिस्टेंस जो होता है उसके लिए देखो हम इस्तेमाल करते हैं, एडिशनल डिस्टेंस के लिए हम ये फार्दर इस्तेमाल करते हैं। जबकि तीसरा वर्ड होता है यानी एडिशनल, कोई भी एनीथिंग एडिशनल, एनीथिंग एडिशनल जो हो ना उसके सेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, एनीथिंग एडिशनल होता है तो उस सेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ज्यादा, कोई भी एक्स्ट्रा, मोर वाले सेंस में, ठीक है। दूसरे अल्फाजों में आप मोर का सेंस लें या एक्स्ट्रा का सेंस लें तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और ये देखो डिस्टेंस के लिए, अब ये देखो क्या है, यानी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, यानी दिस स्कूल, देखो दिस स्कूल, द बिल्डिंग ऑफ दिस स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम हियर, इज नॉट फार फ्रॉम, देखो फार फ्रॉम यानी गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपने देखो इस्तेमाल कर लिया। दो बिल्डिंग के दरमियान देखो, दिस स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें देन वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, खाली हमने फार इस्तेमाल किया। बेटा ये फार FAR नहीं है, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस से देखो कंपैरेटिव है, इसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, देन इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है इसी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, देन इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखें हम इसी एग्जाम्पल को हम देते हैं, दिस स्कूल ओके इज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इज फार्दर, ठीक है, फार्दर देन द बिल्डिंग ऑफ, देखो देन द बिल्डिंग ऑफ
देखो देन द बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, तो देखिए इसमें कंपैरिजन आ रही है बेटा, ये वर्ड देखो इधर की वर्ड पड़ा है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, ये हमने कर लिया इस तरीके से। जबकि ये तीसरा क्या है, देखो तीसरा जो होता है सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा, मोर और एक्स्ट्रा के लिए हम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स डिड फर्दर, देखो फर्दर स्टडी, ठीक है। तो आप देखें इसमें डिस्टेंस की बात नहीं है, ऊपर क्या लिखा हुआ है एनीथिंग एडिशनल, तो हमने देखो फर्दर वर्ड इस्तेमाल किया एनीथिंग के साथ, डिस्टेंस के साथ नहीं। तो ये दोनों अल्फाज देखें, पॉजिटिव डिग्री है डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री एडिशनल डिस्टेंस को ये शो करता है। जबकि ये जो थर्ड वर्ड है बेटा देखो फर्दर, ये एनीथिंग एक्स्ट्रा या एडिशनल हो ना, तो उस सेंस के लिए देखो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जस्ट थोड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है, इनकी थोड़ी कल प्रैक्टिस कर लेंगे, कल थोड़ा क्लास आपका रख लें थोड़ा 5-10 मिनट पहले या नहीं। देखो बेटा कुछ प्रैक्टिस करवा लेंगे आपको अगर आप बोले तो।